Ruling on the title case pertaining to the Babri Masjid Shri Ram Janmabhoomi dispute, the Supreme Court had in November 2019 granted the title of the disputed 2.77 acre of land to the Hindu deity Shri Ram Lala Virajman and directed the government to allocate an alternate site to the Sunni Central Waqf Board for the construction of a mosque in Ayodhya. While the Pran Pratishtha of Prabhu Ram Lala's idol at the under construction Ram Temple is attracting attention internationally and nationally, the 5-acre plot of land in Dhanipur, where the mosque has to be constructed, occasionally turns into a playground for children or a pasture for goats. With a sense of distrust on the foundation formed for the mosque construction and lack of funds, the work on the project is yet to take off. The Pran Pratishtha of Shri Ram Lala's idol in the under construction Ram Temple in Ayodhya has once again put the spotlight on the Babri Masjid case verdict. While the temple is set to be inaugurated soon after the ceremony on January 22, there has been little movement on the project of the proposed mosque at Dhanipur, located at a distance of 25 kilometers from the temple site. Residents of Dhanipur say that when they heard that their village has been selected as the site for the mosque to be built under the directions of the Apex Court, it raised their hopes for development and employment opportunities in the village. However, no movement is visible on the ground. उम्मीद तो बहुत हम लोगों की थी कि यहाँ जब सुनाई पड़ा 2019 में कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन दी है, तो हम लोगों को बहुत उम्मीद जगी कि यहाँ मस्जिद बन जाएगी, अस्पताल बन जाएगा, हर चीज़ बन जाएगा, तो हमें लोग को काफ़ी सुविधाएं हो जाएगी। जैसे अस्पताल यहाँ से लखनऊ है मेन अस्पताल, तो हमें लोग हमारे गांव में ही सुविधा प्राप्त हो जाएगी और रोजगार बढ़ जाएगा। ये सब हमारी उम्मीद तो अभी भी है, लेकिन इसको दिखाई नहीं पड़ रहा है। जी, क्या वजह है आपको लगता है कि ये काम नहीं हो पा रहा है? ये काम क्या मैम, जो हम लोग क्या नाम है से मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त किए हैं, तो बता रहे हैं कि नक्शा वगैरह नहीं पास हुआ था, फिर उसमें कुछ चंदे की कमी है, और फिर दूसरा ट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट आता है 6 महीने साल भर में आता है, यहाँ जो है 26 जनवरी 15 अगस्त में चला जाता है। इसी वजह से कोई काम यहाँ हो नहीं पा रहा है। जी। क्या इस चीज़ में कोई सच्चाई है कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय है वो भी इसके लिए उतना उत्साहित नहीं है? नहीं, ये तो सच्चाई है कि मुस्लिम समुदाय इसमें उत्साहित अभी नहीं है, लेकिन अगर मस्जिद बनने लगेगी तो उत्साहित हो जाएंगे, ये मेरा मतलब हम लोगों का मानना है। Due to lack of funds and the local Muslims' disinterest towards the mosque project, locals feel that the project, which was earlier envisaged as a complex of buildings consisting of a mosque, a super speciality hospital, a community kitchen, a library and a publication house, has now been downsized. और बाकी लाइब्रेरी शायद कटा हुआ है, ऐसा कुछ सुनने में आया है। और हम लोगों को जब ये पता चला कि अस्पताल यहाँ पे मस्जिद के साथ साथ अस्पताल बनेगा, तो लोगों को बहुत ज्यादा खुशी हुई। धन्नीपुर एरिया जहाँ पे मस्जिद प्रस्तावित है, यहाँ पर करीब 15-20 किलोमीटर की रेंज में कोई अच्छा अस्पताल नहीं है। एक आध अस्पताल है तो उनकी फीस इतनी ज़्यादा महंगी है कि हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। और यहाँ तक दिक्कत आती है कि कभी किसी का एक्सीडेंट होता है तो फैजाबाद जिला अस्पताल की जगह हम लोगों को लखनऊ बोलते हैं, रेफर करते हैं, लखनऊ लेकर जाओ, जो यहाँ से करीब 140 किलोमीटर पड़ता है। With the Indo-Islamic Cultural Foundation, IICF, admitting that lack of funds is stalling the project, residents are now urging the government to step in and provide funds for the construction of a hospital, community kitchen and library at the site. सरकार इंटरेस्ट ले, जिस तरह से राम मंदिर को बनाने में सरकार ने इंटरेस्ट लिया है, ऐसे सबका साथ सबका विकास के नाम पे हम लोगों के लिए भी सरकार इंटरेस्ट ले कि कम से कम मस्जिद नहीं तो अस्पताल कम से कम बन जाना चाहिए। सरकार इतना इंटरेस्ट जरूर ले, ये सरकार से हम लोगों की रिक्वेस्ट है। Former litigants and a section of Muslim leaders in Ayodhya did not approve of the design of the project, resulting in lack of acceptability of the project within the Muslim community. Some of them allege that it had been designed in a manner that it entails maximum cost and allows room for a possible embezzlement of funds. जी, वहाँ अभी कोई काम नहीं है, केवल बोर्ड लगा है। बोर्ड लगा करके जो है उस पर जो है केवल दिखाया जा रहा है, और अखबारों में ऐसा नक्शा दिखाया जाता है जिससे मुसलमान उसको मानने को तैयार नहीं। हमारे यहाँ जो मस्जिद बनती है, मस्जिद की खुद की पहचान है, मंदिर की खुद की पहचान है, गिरजाघर में खुद की पहचान है, हर जो है धार्मिक स्थलों की अपनी खुद की पहचान है। जफर फारूकी ने अपना एक प्राइवेट ट्रस्ट बनाया है, ऐसा नक्शा दिखाते हैं जिससे जो है हमारे हिंदुस्तान का मुसलमान उस तरफ ध्यान जो है भटक चुका है, और मुसलमान ना पूछ रहा है कि मस्जिद क्यों नहीं बनी, ना पूछेगा। कहीं ना कहीं आप
की बात से जो एक ऐसा आभास हो रहा है कि मुस्लिम जो है वर्तमान के, वो अब इतनी शायद इतना सोच नहीं रहे हैं उसके बारे में, या सोचना चाहते नहीं है, या ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे। देखिए, मुसलमान बिल्कुल नहीं जो है इन्वॉल्व हो रहा है। जब तक अयोध्या में रही तब तक चर्चा में रही, गंदीपुर में चली गई है, ये काम जफर फारूकी का है, वो नक्शा दिखाते रहेंगे ऐसे, और काम कभी कुछ नहीं होगा, न उसके लिए हिंदुस्तान का मुसलमान लिटरेचर है। ऐसी क्या वजह है आपको लग रही है कि अब मुसलमान जो है ज़्यादा इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे? देखिए, दिलचस्पी इसलिए नहीं है कि उनका नक्शा नहीं सही है। मस्जिदों की अपनी पहचान, अगर मस्जिद एक शादी भी बना दी गई होती तब तक मस्जिद बन गई होती। मस्जिद को शोरूम दिखाते हैं और ऐसा लगता है कि ये म्यूजियम बना रहे हैं, इसलिए मुसलमान नाखुश है। उसमें जो प्लान अभी मीडिया के सामने जो बातें आई हैं, उसमें ऐसा कहा गया कि कम्युनिटी किचन हो, अस्पताल हो, क्या इतने वृहद स्तर पर बनाना ये नागवान है? देखिए, ये सब केवल कहने की बात है, ये सब कभी हो नहीं पाएगा। कि जो है बहुत से लोगों ने सुना है कि किसी ज़माने में लोग कहते थे कि कोई आदमी ऐसा भी था जो आसमान में सूर्य लगाने की बात कर रहा था। उसी तरीके से जफर फारूकी की बात है। उनका जो मतलब है कि जो है हम ऐसा काम बताएंगे कि लोग ज़रूरत से ज़्यादा जो है चंदा देंगे तो हम उसमें काम शुरू करेंगे। ऐसा लोगों को मंजूर नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को ऐसा मंजूर नहीं। Some former litigants fear that if Muslims accept the Dhanipur land as an alternate site for the now demolished Babri Masjid, it may open a Pandora's box, and a precedent will be set for the future, and many more masjids may be demolished in the future. Moreover, Muslim bodies like the All India Muslim Personal Law Board claim that it is against Islam to build a mosque on donated land, and that the proposed mosque was in violation of the Waqf Act, according to which mosques or land of mosques could not be bartered. देखिए, पहली बात तो ये थी कि जब वो 142 का यूज़ कर रहे थे तो वन साइडेड नहीं करना चाहिए था, वो अगेंस्ट आर्टिकल 142 के था। मतलब किसी फेवर में आप 142 यूज़ नहीं कर सकते थे। तो क्लियर हो गया कि हिंदू के फेवर में उन्होंने जजमेंट किया और एक साइड को इग्नोर कर दिया। अब बात आती है कि मस्जिद की जजमेंट में उन्होंने लिखा है कि मुसलमानों को उनकी फीलिंग सेंटिमेंट्स को देखते हुए एक अल्टरनेट साइड दी जाए इनको और परमानेंट जगह दिया जाए। तो हम लोग ये समझने का परमानेंट जगह दे भी रहे हैं तो अयोध्या के आसपास देंगे, है ना, क्योंकि जो सिटी के अराउंड देंगे, क्योंकि वो भाई मस्जिद दे रहे हैं तो सिर्फ नमाजियों के लिए दे रहे हैं, तो जो लोग नमाज पढ़ेंगे तो नियरेस्ट जगह जाएंगे ना, 22 किलोमीटर तो जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए। अब इसमें दो पहलू आ गए। दो पहलू ये है, पहला पहलू ये है कि ज़मीन लिटिगेंट्स या अपीलेंट को नहीं दी गई, वो ज़मीन दी गई है सुन्नी सेंटर बोर्ड को। सुन्नी सेंटर बोर्ड एक गवर्नमेंट बॉडी है जो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। स्टेट गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ यानी चीफ मिनिस्टर है, उनके कंट्रोल में है। तो अब क्लियरेंस कहाँ से मिलेगा? सुन्नी सर्व बोर्ड, लोग कहते हैं पैसे की दिक्कत की वजह से नहीं बना, ऐसा नहीं है। सुन्नी सर्व बोर्ड के पास इतना पैसा 4 ताजमहल खड़ा कर दे, लेकिन सेंक्शन अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर है, दोनों तरफ से सिग्नल नहीं मिल रहा है। हमारा क्या, मेरी आपत्ति क्यों है? क्योंकि अगर हम उस अल्टरनेट साइट को एक्सेप्ट कर लेंगे तो इनके पास 30,000 मस्जिदों की लिस्ट है। तो 30,000 मस्जिदों को हमें बदलना पड़ेगा, जगह अल्टरनेट जगह देखनी पड़ेगी। तो इसलिए हमने उसको एग्जाम्पल बन था, हमने उसको कहा कि ये क्योंकि अल्टरनेट जगह दे रहे हैं जो कि लॉ के खिलाफ है, वक्फ एक्ट के खिलाफ है और शरीयत के खिलाफ है, इसलिए हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। आपको लगता है कि ऑल्टरनेट जगह अगर स्वीकार आप कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, तो उस वजह से एक पैंडोरास बॉक्स ओपन हो जाएगा नेचुरली और पूरे कंट्री के अंदर? जब नहीं तो तब तो वो देखिए कह रहे हमारे कितने मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, डिमोलिश कर रहे हैं। और जब ये तय हो गया था कि इस मस्जिद के बाद ये मुकदमा जो भी जिसके फेवर में जाए, गारंटी थी कि फिर और मामले नहीं उठेंगे। ये मसला काफ़ी एग्जाम्पल है, लोगों ने, गवर्नमेंट ने, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने और जुडिशरी ने, दोनों ने हमारे साथ फिर चीटिंग की। हम जुडिशरी इसलिए कह रहे हैं, वो हेरिंग कर कैसे रहे हैं? ये जब एक बन गया 1991 का कि जो रिजर्व प्लेस है वो उसका स्टेटस को इसी रहेगा 15 अगस्त की पोजीशन पे। हाँ, तो अब सवाल ये होता है कि ये इस केस को सुनाई क्यों हो रही, लोअर कोर्ट में कैसे हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट जज कैसे सुन रहा है, हाई कोर्ट कैसे सुन रहा है?
ये भी चीट कर रहे हैं। तो बात यहाँ पर मुसलमान को, तो मुझे लगता है कि उनको इस लेवल पर लाना चाहिए मुसलमानों को कि वो सर न उठा सके, विद ऑनर विद डिग्निटी जी ना सके। और हम लोग फाइट इसी लड़ रहे हैं, हम अपने सर्वाइवल भी लड़ना है, दीन की भी लड़ना है, और हम बता दें कंट्री के लिए भी हम लड़ना है। देखिए, अगर कंट्री में जस्टिस नहीं होगी और जस्टिस से लोग लड़ेंगे नहीं तो एनआरकी आ जाएगी। The IICF admits that the project faced resistance from the Muslim community and that there was lack of funds for the same. Since the project design especially became a reason for the lack of its acceptability within the Muslim community, the IICF claims that it is in process of revising the project design now. जजमेंट से पहले का जो एक संघर्ष रहा, और जो कि कहा जाए कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसे वाक़यात भी रहे कि जो एक तरह से नहीं होने चाहिए थे, तो उन सब से आगे बढ़ने के लिए व्हाट बेटर कि हम शोकेस करें कि अवध हमेशा हिंदू मुसलमान के भाईचारे का गहवारा रहा है। ये वो इलाका है जहाँ से हम गंगा जमनी तहजीब की हम बात करते हैं, पूरी दुनिया में जिसकी पहचान है वो यहीं से आती है। वो अयोध्या हो चाहे लखनऊ हो, और वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भी वो ज़मीन है, और वो उसको पर्सोनिफाई कर रहे हैं। तो उसको शोकेस करने का हमारे पास, ताकि जो शेयर्ड स्ट्रगल और शेयर्ड लेगेसी है हिंदू और मुसलमान की, और जिसका एक बहुत बड़ा पड़ाव था 1857, जहाँ दोनों ने, हिंदू मुसलमान ने अंग्रेज़ों हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया, और उसके साथ बाद में जो हमारी लेगेसी, चाहे वो हमारे खान पान में हो, हमारे पहनावे में हो, हमारे बोलचाल में हो, हमारे लिटरेचर में हो, वो बहुत ही सहज है और वो है। तो उसको कैसे दुनिया के सामने रखा जाए, तो एक ऐसा प्रोजेक्ट ये प्लान किया गया। उसको हम आर्काइव की शक्ल में इन चीज़ों को रखें, इन्हीं चीज़ों के साथ, चाहे वो मस्जिद का एरिया हो जो इबादत के लिए, और जो हॉस्पिटल जो सर्विस के लिए, उसके साथ कम्युनिटी किचन। बात जब हमने ये प्रोजेक्ट कंसीव करके ड्यूली हमने ड्राइंग सबमिट करे, उसके बाद हमने कोशिश करी कि वो जल्द से जल्द उसके अप्रूवल्स हों, बट फॉर्मली वो अप्रूवल्स हुए भी, बट हमारे पास अब सब्सटेंशियल फंड नहीं आया था कि हम उसके मुनासिब जो डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह हैं वो वक्त पे दे पाए। तो वो डिलेड रहा इस तरह से प्रोजेक्ट। मतलब कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि जो फंड्स का अभाव रहा उससे ही प्रोजेक्ट डिलेड रहा। तो हमारे जो चीफ ट्रस्टी हैं मिस्टर ज़फ़र फारूकी, उन्होंने एक एक्सरसाइज की पिछले साल अक्टूबर से। उन्होंने मुंबई, जो कि कमर्शियल कैपिटल है इंडिया का, और वहाँ पे काफ़ी संसाधन है, और कुछ लोगों से बात हुई, क्योंकि हॉस्पिटल एक बड़ा प्रोजेक्ट है उसका, और हॉस्पिटल की बात जब होती है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इतने दूर दराज के इलाके में जहाँ जगह है, वहाँ पे आपको बहुत एक्सपर्टाइज चाहिए उसको हॉस्पिटल को चलाने के लिए, सस्टेन करने के लिए। तो उसमें कई ऐसे ग्रुप से बात हुई, और उस एक मीटिंग हुई मुंबई में। उस मीटिंग में कुछ बढ़ चढ़ के लोग आए। उसमें एक फारूकी साहब ने एक कमेटी भी कंस्टिट्यूट करी, मस्जिद डेवलपमेंट कमेटी, और उसमें वहीं के लोकल हैं मुंबई के आरफात शेख साहब, उनको उसका चेयरमैन बनाया। और ये कुछ सजेशंस आए कि हम इसको प्रोजेक्ट को और बेहतर करें और उसको उसकी रीच बढ़ाएं। तो उसमें रीडिज़ाइन की बात आई, जो मस्जिद है और जो कि एक इंडियन मुस्लिम्स में जो एक एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर्स हैं उस तरह का रीडिज़ाइन किया जाए। तो वो भी रीडिज़ाइन का एक सिलसिला भी जारी है। और जो फंड मोबिलाइजेशन के लिए कमेटी काम कर रही है, दे आर ड्राइंग प्लान्स की एग्जैक्ट क्या टाइम फ्रेम बनेगा, जब कितना फंड आएगा, तो उस पर अभी काम चल रहा है। और मैं समझता हूँ कुछ वक्त लगेगा और जल्दी ये प्रोजेक्ट ग्राउंड पे आएगा। पर जो उसका असल मकसद है प्रोजेक्ट का, कि जो सफ़र है 4 साल में, अगर हम नवंबर 2019 से वो सफ़र आज तक का देखें, तो जब लोगों में विद इन कम्युनिटी एक एक्सेप्टेंस नहीं थी, ये था कि ये जगह पे अभी नहीं बनना है, कुछ सवालात ऐसे आते थे। और आज हम देखते हैं कि लोगों में बड़ा उत्साह है, खासतौर से मुसलमानों में, और कहते हैं कि जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट बने, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो ये चीज़ें एक है, एक बहुत फेवरेबल डेवलपमेंट है एक सफ़र में। तो उम्मीद है कि जल्दी उसकी फंडिंग भी होगी और ये प्रोजेक्ट सामने ज़रूर आएगा।
अभी वर्तमान में सर कितनी बिल्डिंग्स इसमें होंगी, अभी क्या प्लान फाइनलाइज, अभी तक जो फाइनलाइज हो पाए क्या? नहीं, अभी देखिए जो अर्लियर हमारे डिजाइन हैं उसमें तो एक प्रोजेक्ट सबमिटेड, पर अभी जो ये रीडिजाइन हो रहा है, जो ये टीम कर रही है, तो इट इज स्टिल हमारा एक फॉर्मुलेशन की स्टेज पे है और इसमें भी थोड़ा वक्त और लगेगा। मैं उम्मीद करता हूँ अपने मीडिया के भाई बहनों से कि वो उस पर भी थोड़ा सब्र करें और जल्दी एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो कंसीव किया है वो ग्राउंड पे जरूर आएगा। कोई ऐसी चीज जो जरूरी होगी ही अभी तक जो मस्जिद होगी, अच्छी मस्जिद होगी, बड़ी मस्जिद होगी विद मिनरेट्स। हाँ, मिनरेट्स होगी और एक हॉस्पिटल होगा जो कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा और केटर करेगा। उसके साथ उसकी किचन फैसिलिटी है, उसमें कम्युनिटी किचन भी होगा, ये अनाउंस्ड है। और एक आर्काइव होगी, अगेन जो हम बार बार कहते हैं, जो अवध को शोकेस करने के लिए, क्योंकि ये जो जमीन है और जो ये आई है जिस जजमेंट के, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में ये जजमेंट में ये जमीन आई है, तो उस सिचुएशन को हम थोड़ा सा लोगों तक उसका मैसेज दें कि साहब अब हिंदुस्तान जो है आगे बढ़ रहा है, पर हमारा एक पास्ट भी है। उस पास्ट में हम जिस चीज़ों को देखते हैं निगेटिविटी, हम पॉजिटिविटी में देखें कि हिंदू और मुसलमान हमारे बीच में कितना इस इलाके में एक शेयर्ड स्ट्रगल और शेयर्ड लेगेसी है, मैंने पहले भी कहा और उसको, और वही चीज़ का जो इमेज है दैट मर्यादा पुरुषोत्तम, उसी को हम आगे बताएं। वही हमारी गंगा जमुनी तहजीब का एक ग्राउंड बना जो आज पूरी दुनिया इस इलाके को जानती है और पहचानती है। Meanwhile, Dhanipur residents say that while they can survive without a masjid, the government should take interest and provide funds to build a hospital and a library at the site. अगर ट्रस्ट के पास पैसे नहीं हैं उतने, तो सरकार को भी इस काम में मदद करना चाहिए कि कम से कम मस्जिद अभी मान लो पैसे नहीं है तो कम से कम अस्पताल का काम जो है सरकार को इंटरेस्ट लेके करवा देना चाहिए और इससे जो है सबको फायदा होगा और खास तौर से हम जैसे लोकल लोगों को जो 8-10 किलोमीटर के रेंज में रहेंगे उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि भाई ट्रस्ट के पास अगर पैसे नहीं है तो सरकार इंटरेस्ट ले अस्पताल के काम के लिए। और मस्जिद हम लोगों के यहाँ है, माशाल्लाह मस्जिद है कि हम लोगों का भी काम चल रहा है, दिक्कत नहीं है मस्जिद से लेकर। जी, कोई और दिक्कतें परेशानियां भी हैं यहाँ के स्थानीय लोगों को? स्थानीय लोगों की जैसे दिक्कतें की बात यह है कि जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो हम लोग सबके साथ के नाम पे वोट तो देते हैं, लेकिन जहां विकास की बात आती है तो आप अयोध्या में जाके देखिए आज की डेट में, जैसे आज 15 जनवरी हो गया है, आप अयोध्या में जाके देखिए वहां पे आपको काफी ज्यादा विकास देखने को मिलेगा। और रही बात धन्नीपुर जहां पे मस्जिद का प्रस्ताव था, जमीनें दी गई थी, वहां के विकास के नाम पे आप सामने जितने भी रोड पे बनी हुई हैं, घरें बने हुए हैं, इनका यहाँ पे नाली तक की सुविधा नहीं बनी है, मतलब घर के पानी की निकासी भी नहीं हो पा रही ठीक से। मतलब ये समझ लीजिए कितना वहाँ के डेवलपमेंट और यहाँ के डेवलपमेंट में फर्क है। When residents of Dhanipur village heard that the proposed mosque project to be built at the chosen site, in line with the Supreme Court's verdict in the Babri Masjid case, will consist of a super specialty hospital, a community kitchen, and a library, it raised among them hopes for all-round development of the village. However, even 2 years after the UP government allocated land to the UP Sunni Central Waqf Board for the development of the project, even its foundation is yet to be laid. While a section of Muslim leaders did not approve of the project's design and exuded distrust on the body formed to execute it, the Indo-Islamic Cultural Foundation says that lack of funds is the biggest hindrance in execution of the project. It admits that the project, especially its design, met with a lot of resistance from the Muslim community. However, with the BJP leader from Mumbai showing interest in taking forward the project, it is being redesigned to ensure wider acceptability within the community. Meanwhile, residents of Dhanipur village say that while they can survive without a mosque, the government should provide funds to build a super specialty hospital, a community kitchen, and a library at the chosen site. In Ayodhya, this is Shikha Salaria for The Print with video journalist Suraj Bisht. For more such videos, subscribe to our YouTube channel and follow our Twitter and Facebook pages.